अस्सलाम वालेकुम। हम जो पढ़ रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ रहे हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है मैंने आपको बताया कि एक कैलेंडर है जिसको यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसमें जो रेफरेंसेस यूज़ किए जाते हैं टाइम के, मिलेनियम, सेंचुरी एंड द डिकेड्स, they are the references made to denote the periods used in these time scales. In addition, the divisions in the time scale were made into the following units. Eon is a mega unit comprising a duration of half a billion years or more time. Eon का जब वर्ड यूज़ होगा तो आप जो बात कर रहे होंगे वो हाफ बिलियन ईयर या उससे ज़्यादा टाइम की बात कर रहे होंगे। इरा का जिस वक्त वर्ड यूज़ होना है तो उस वक्त आप सेवरल हंड्रेड मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं, यानी इरा इज़ अ लार्जर यूनिट देन ईयॉन। इरा में सेवरल हंड्रेड मिलियन ईयर्स की बात होती है और ईयॉन के अंदर हाफ बिलियन ईयर्स या इससे ज़्यादा की बात होगी। Period is used to cover hundreds of millions of years. Epoch is used to denote the durations of tens of millions of years, and age is used to cover a duration of millions of years in the earth history. अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड किया जाता है दो मेजर इयॉन्स में, फेनेरोजोइक इयॉन और क्रिप्टोजोइक इयॉन। The term Phanerozoic was derived from the Greek word phaneros, meaning visible, and zoo means life. The term Phanerozoic was used to refer the eon of visible life on the earth. The term Azoic was used to denote the eon of no life on the earth. The term Cryptozoic was derived from the Greek word crypto, which means hidden, and zoo means life. Cryptozoic eon refers to the eon of the hidden life. Eons and eras. There are these two eons are divided into various eras. The geological time of the earth is divided into five major eras: Cenozoic era, Mesozoic era, Paleozoic era, Precambrian era, and the Archean era. वो यहाँ पे आपको जो टेबल दिखाया गया उसमें आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक को उन्होंने प्री कैम्ब्रियन लाइफ इकट्ठे दिखा दिया जो बुक के अंदर है। Precambrian era, the short form of million of years is the MA. The duration of Precambrian era refer to the span of a lifetime between the 4500 million years to the 540 million years. It is further divided into two eras, Proterozoic era and the Archeozoic era या Archean era. Proterozoic from 500 million years to 540 million years, and the Archeozoic era from 4500 million years to the 2500 million years. Then the Archeozoic era is primitive than the Proterozoic era. These are further divided into various periods. The Precambrian era, it is the oldest era of the Earth. The period between the formation of the Earth around 4600 million years to the beginning of the Cambrian period about the 542 million years ago is named as the Precambrian era. तकरीबन 88% जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसका जो 88% है वो ये प्री कैम्ब्रियन एरा है, लेकिन इसके बारे में हमें ज़्यादा इल्म नहीं है क्योंकि हमें फॉसिल्स वगैरह नहीं मिले। Very little is known about the Earth history during this period. The fossil record of Precambrian period is very poor. The fossils present, like stromatolites, are of limited biostratigraphic use. Detail of plate motion and other tectonic functions are hazily known in the Precambrian. It is the base period of entire geological history of the Earth. ये तमाम जियोलॉजिकल हिस्ट्री का बेस टाइम पीरियड है, यानी सबसे ओल्ड जो ये टाइम पीरियड था वो यही था। The notable observation of the Precambrian period are first appearance of life on the Earth. लाइफ जो है सबसे पहले Precambrian period में अपीयर हुई। टेक्टोनिक प्लेट्स वर प्रेजेंट एंड बिगेन मूव। टेक्टोनिक प्लेट्स थी प्रेजेंट थी और वो उन्होंने मूव करना शुरू किया। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आई, इससे पहले ऑक्सीजन नहीं थी और जो भी लाइफ थी वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हुए ज़िंदा थी।
ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट टू वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस प्रीवेल्ड ऑन द। पहले सारा जो क्लाइमेट था वो ड्राई था और कोल्ड था, फिर वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट जो है वो अर्थ पे फैलना शुरू हुआ। This is the earliest of geological ages. It is further divided into Proterozoic era and the Archean era. The age of the Earth is probably 4,500 million years ago. The Archean era oldest era है और तकरीबन ये 3,960 million years से 2,500 million years तक रहा। इसमें अब क्या क्या इवेंट्स हुए, माउंटेन बिल्डिंग हुई, पहाड़ बने, फॉर्मेशन ऑफ बैंडेड आयरन ओर्स एंड द ग्रीन स्टोन बैंड्स, एग्जिस्टेंस ऑफ शैलो सीज, accumulation of free oxygen and origin of life, especially the prokaryotes, bacteria and the blue-green algae. प्रोटेरोजोइक ईरा के अंदर ड्राई और कोल्ड क्लाइमेट था, वार्म और माइस कंडीशंस प्रीवेल हुई। यूकैरियोटिक सेल्स ओरिजिनेट हुए, मल्टी सेलुलर लाइफ ओरिजिनेट हुई, स्पॉन्जेस आई, निडेरियंस और एनिडिड्स, यानी जो अर्लियर है ना फाइलम एनिमल्स के, वो इस एरा के अंदर ओरिजिनेट होना शुरू हो गए थे। नेक्स्ट है पेलियोजोइक ईरा। ये एशियन टाइम था, ये सेकंड मेजर ईरा ऑफ अर्थ हिस्ट्री। इसमें सारे इनवर्टिब्रेट्स आए थे, आप इसको इनवर्टिब्रेट्स की एज भी कह सकते हैं। और इसका जो लाइफ स्पैन था वो तकरीबन 540 मिलियन ईयर्स से 245 मिलियन ईयर्स तक था। ये फर्दर 6 पीरियड्स में डिवाइड हुआ, प्री कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, साइलोरियन, ऑर्डोविजियन, कैम्ब्रियन। These are very important periods in the Earth history. Each period has shown a very significant change in the planet's constituents. Cambrian period जो था वो 540 से 505 मिलियन ईयर्स अगो इसका टाइम था। और इसमें आपको माइल्ड क्लाइमेट प्रिवेल या फैलता हुआ नज़र आएगा, एक्सटेंसिव सीज नज़र आएंगे, समंदर नज़र आएंगे, स्पिलिंग ओवर कंटिनेंट, शेल्ड मरीन इनवर्टिब्रेट्स आपको नज़र आएंगे, एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्सप्लोसिव का वैसे जो लिटरल मतलब होता है वो होता है धमाका खेज, लेकिन इधर ये धमाका खेज वाला सेंस नहीं, इधर ये है कि बहुत तेज़ी से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ शुरू हुई। कैम्ब्रियन पीरियड में स्विम करते हैं, स्पॉन्जेस फ्लोट करते हैं, गाइनोडर्म क्रॉल करेंगे, स्टारफिश क्लिंगिंग और बर्विंग सी एनिमल्स जो हैं, सी कम्बर जेलीफिशेस हैं, ट्राइलोबाइट्स अपीयर हुए, ब्रेकियोपोड्स हुए, गैस्ट्रोपोड्स हुए, रेडिकुलेरियंस हुए, वर्म्स, वाटर स्कॉर्पियंस। एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स वाज ऑब्जर्व्ड ओनली एज अ एल्गी। कैम्ब्रियन पीरियड में आपको जो लैंड प्लांट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, अलबत्ता ओशन में आपको लाइफ काफ़ी मिलेगी। और इसमें ही ड्यूरिंग दिस पीरियड द कॉन्टिनेंट्स हैड अ सॉइल क्रस्ट एंड वर रिजेंबलिंग डेजर्ट्स। कॉन्टिनेंट्स या बरियाज़मों के ऊपर जो क्रस्ट था वो ज़ाहिर देखने में डेजर्ट या सहराओं की तरह से, यानी ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं थी। ऑर्डोविजियन पीरियड जो है ये 505 से 438 मिलियन ईयर्स के दरमियान रहा। इसकी जो सिग्निफिकेंट इस टाइम में ऑब्जर्वेशंस थी, माइल्ड अडाप्टिव क्लाइमेट, अडाप्टिव रेडिएशन, शैलो सीज थे, रेडिएटिंग फ्रॉम द लैंड एंड स्प्रेडिंग बैक ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टिल रिस्ट्रिक्टेड टू द वाटर। The first vertebrates originates as a jawless fishes and the invertebrates were dominant. ऑर्डोविजियन पीरियड के अंदर आपको कौन कौन से एनिमल्स नजर आएंगे? क्रस्टेशियंस, ट्राइलोबाइट्स आएंगी, ग्रेप्टोलाइट्स, ब्रेकियोपोड्स, ब्रायोजोन्स, एकाइनोडर्म्स, कोरल्स, मोलस्क्स, cephalopods and the are dominated in all water masses. The first fungi originated during this period. अब इसमें लैंड पे प्लांट्स आना शुरू हुए थे और सी लेवल जो था वो काफ़ी हाई था ऑर्डोविजियन टाइम पीरियड में।
साउदर्न कॉन्टिनेंट्स ये इकट्ठे होकर इन्होंने सिंगल लैंड मैस बनाया और उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं।